अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे ली शैटिलियर प्रिंसिपल। मैंने आपको क्या बताया था, हमने इस लॉ की, इस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट की थी क्या, इफ़ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब इट बिहेव इन सच अ वे एज टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ दैट डिस्टर्बेंस। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो ली शैटिलियर प्रिंसिपल है, इसकी बहुत सारी जो हैं वो एप्लीकेशंस हैं। उसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन बेटे क्या थी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस को अगर चेंज किया जाए तो क्या इफेक्ट आता है, वो हमने डिटेल से पढ़ा। फिर हमने उसकी दूसरी एप्लीकेशन इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर, वो भी डिटेल से पढ़ लिए बेटे। आज हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। एज यूजुअल बेटे पहले हम लोग इसको रीड आउट करेंगे, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। बुक का पेज नंबर आपका है 181, आप लोग ओपन करें। टॉपिक हमारा है 8.14, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। इसकी दो एप्लीकेशन जो हैं वो हमने कर ली हैं, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन और इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम हम कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड है ये एप्लीकेशन, ये इसकी हम आज पढ़ेंगे। The effect of change in temperature. Lee Chatelier principle can be used to predict the direction of a reaction with a change in temperature. Temperature is the only factor that also affects the value of equilibrium constant Kc. For an exothermic reaction, an increase in temperature adding heat favors the reverse reaction. A decrease in temperature removing heat favors the forward reaction. The equation for the conversion of SO2 to SO3 is given below. SO2 plus O2 SO3 delta H is equals to minus 198 kilojoule. According to Lee Chatelier principle, an increase in temperature will shift the reaction from right to left. SO2 plus O2 SO3. As a result of this change, the concentration of SO3 will decrease and the concentration of SO2 and O2 will increase. Therefore, the value of equilibrium constant will decrease. The equilibrium will shift toward left. The decrease in temperature will favor the forward reaction and the formation of the product. The production of SO3 is favored at a low temperature. On the other hand, an increase in temperature will shift the reaction from left to right. SO2 plus O2 SO3. आगे आ जाए बेटे। Due to this change, the concentration of SO3 will increase and concentration of SO2 and O2 will decrease. Therefore, the value of equilibrium constant will increase. The equilibrium will shift toward right. The increase in temperature will favor the reverse reaction and the formation of the reactant. The production of SO3 is not favored at high temperature. Kc for the reaction 2.8 into 10 raised to power 2 at 1000 K, whereas 298 K, the value of Kc is 1 into 10 raised to power 26. For an endothermic reaction, an increase in temperature adding heat favors the forward reaction. A decrease in temperature favors the reverse reaction. The equation for conversion of N2O4 to NO2 is given below. According to Lee Chatelier principle, an increase in temperature will shift the reaction from left to right. As a result of this change, the concentration of N2O4 will decrease and the concentration of NO2 will increase. Therefore, the value of equilibrium constant will increase. The equilibrium will shift towards right. The increase in temperature will favor the forward reaction and the formation of the product. On the other hand, a decrease in temperature will shift the reaction from right to left. The decrease in temperature will favor the reverse and the formation of the reactant. Kc for this reaction is 7.7 into 10 raised to power minus 5 at 273 K, whereas 0.4 at 373 Kelvin. टॉपिक हमारा ज़रा लेंथी ही हो गया, इसको समझा रीडिंग करते करते काफ़ी टाइम ही लग गया, लेकिन ये इजी है बेटे, आपने इससे परेशानी हो ना, बहुत इजी टॉपिक है। हम क्या पढ़े थे, हमने पढ़ा ली शैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा। फिर मैंने आपको बताया कि इस प्रिंसिपल की 4 मेन एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन हमने इसकी पढ़ी थी कि अगर कंसंट्रेशन चेंज की जाए
चाहे वो रिएक्टेंट की हो चाहे वो प्रोडक्ट की हो, तो क्या इम्पैक्ट आता है वो हमने डिटेल से पढ़ा। फिर लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इफेक्ट पढ़ा बेटे कि जब प्रेशर या वॉल्यूम में चेंज आए तो क्या इफेक्ट आता है। आज हम तीसरी एप्लीकेशन इसकी हमने अभी रीडिंग की, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो ली शैटिलियर प्रिंसिपल जो है उसको यूज किया जाता है प्रिडिक्ट करने के लिए, क्या रिएक्शन की डायरेक्शन, जो रिएक्शन की डायरेक्शन है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हम इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं बेटे। और विद द चेंज इन टेम्परेचर के अगर किसी भी रिएक्शन में किसी भी टाइम पे जब भी वो रिएक्शन हो रहा है, अगर टेम्परेचर जो है उसमें एक चेंज लेके आया जाए, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो आप लोग या टेम्परेचर डिक्रीज कर दो, तो हम जो है वो रिएक्शन की जो डायरेक्शन है उसको क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर जो है ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करता है। मैंने क्या कहा, टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करता है। अब टेम्परेचर की बेस पे हम लोग रिएक्शंस को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एक आपके पास आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। हम दोनों को अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग पढ़ेंगे। आपकी बुक में भी इस यहाँ पे हेडिंग दी हुई है फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप नोट लिखते हो तब भी आप ऐसे लिखोगे कि पहले हम लोग किसको एक्सप्लेन कर लेंगे, पहले हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आगे फर्दर हमने दो कैटेगरीज इसकी कर लेनी है। एक वो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे यानी कि हीट जो है वो वहां पे ऐड हो रही होगी, और दूसरी चीज जो हम स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा यानी कि हीट जो है वो रिमूव हो रही होगी। सिस्टम में जब हीट आती है बाहर से तो क्या होगा, टेम्परेचर ऐड अप हो जाएगा। जब आपके सिस्टम में से हीट निकलती है बाहर तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को भी आगे फर्दर हमने दो कैटेगरीज में पढ़ना है बेटे। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, बहुत ईजी, अगर आप लोग समझ जाओ मेरी बात। हम बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को आगे फर्दर हमने दो मेन पॉइंट्स में डिवाइड कर लेना है, इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसका मतलब क्या हुआ कि हीट जो है वो सिस्टम में ऐड हो रही है बेटे, और जब सिस्टम में हीट ऐड होती है मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। रिवर्स रिएक्शन जो है उसको वो फेवर करेगा इंक्रीज होना टेम्परेचर का। इसी तरह जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो हीट जो है वो सिस्टम से क्या होती है, रिमूव होती है। और टेम्परेचर का डिक्रीज होना बेटे फेवर करता है किसको, फॉरवर्ड रिएक्शन को। आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इस पूरी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो कौन सी दी हुई है, SO2 + O2। SO2 और O2 दोनों के दोनों क्या चीजें आपके पास, रिएक्टेंट है, दोनों कंबाइन हुए, आपके पास क्या प्रोडक्ट बना, SO3 बना। और यहाँ पे जो आपको डेल्टा H की वैल्यू दी है वो क्या दी हुई है, -198 किलो जूल। ठीक है, -198 किलो जूल दी हुई है अकॉर्डिंग टू ली शैटिलियर प्रिंसिपल। अगर इसी एग्जाम्पल की हमने आगे फर्दर बात करनी है बेटे, ली शैटिलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम देखें अगर तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन जो है वो राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी हमने बताया था ना कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये कौन सी रिएक्शन को फेवर करेगा, इन रिवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कहाँ, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और इस चेंज की वजह से जब रिएक्शन आपका शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो SO3 है, ये SO3 इसकी कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाएगी बेटे, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और SO2 और O2 जो है इनकी कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मैंने क्या बात बताई आपको, देखो मैंने क्या कहा, अगर ये जो पूरी हमने इक्वेशन बताई है, जो हमने एग्जांपल ली है, अकॉर्डिंग टू ली शैटिलियर प्रिंसिपल, जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा रिएक्शन मूव करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्या मैंने कहा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और जब ये राइट टू लेफ्ट मूव करेगा तो उसकी वजह से क्या चेंज आएगा, उसकी वजह से चेंज क्या आएगा कि जो SO3 की कंसंट्रेशन है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। SO2 और O2 की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अच्छा,
फिर मैंने आपको क्या बताया कि जब SO3 की कंसंट्रेशन बेटे कम होना शुरू हो जाएगी, इन दोनों की कंसंट्रेशन मैंने क्या बताया था अभी, हाई होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो हमारे पास दो इसके रिजल्ट्स आएंगे। कौन कौन से रिजल्ट आएंगे? जब ये चेंज आ गया हमारे पास, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, इन दोनों की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो इसकी वजह से अब क्या होगा कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो कांस्टेंट की, जो KC की वैल्यू है वो भी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आता है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो KC है बेटे, उसकी वैल्यू भी क्या होना शुरू होती है, डिक्रीज होना शुरू होती है, और इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट कर जाएगा टूवर्ड लेफ्ट। कहाँ करेगा मूव वो, टूवर्ड लेफ्ट। और इसको ये जो इसका मतलब वो ये हुआ कि जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे ना, जब टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे, तो डिक्रीज करने की वजह से हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फेवर करेगा, रिएक्शन मूव करेगा किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में। और आपके पास अब क्या बनना शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे। मैंने क्या वर्ड बोल दिया, अब आपने क्या कर लेना, टेम्परेचर को क्या करना शुरू कर देना, डिक्रीज करना शुरू कर देना है। जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज कब होता है, जब वहां से हीट जो है रिमूव होना शुरू होती है। जब बेटे टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो क्या हो जाएगा, आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो SO3 की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि SO3 जो है ये फेवर करता है एट लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर लो होगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। प्रोडक्ट कौन सा है हमारा, इस केस में SO3 है। इसी तरह अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारा रिएक्शन जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस चेंज की वजह से, जो टेम्परेचर चेंज की वजह से जो कंसंट्रेशन है SO3 की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और SO2 और O2 की क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू होती है। कब, जब हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो ये बढ़ना शुरू हो गया, ये बढ़ेगा तो अल्टीमेटली ये क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो और जब ये डिक्रीज होना शुरू होते हैं, ये बढ़ना शुरू होता है, तो क्या होता है कि जो KC होता है बेटे, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो भी क्या करना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो शिफ्ट कर जाएगा टूवर्ड राइट। और हमारे पास इन द एंड दो मेन पॉइंट्स आते हैं कि जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो फेवर करेगा आपका रिवर्स रिएक्शन और फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर। और जो SO3 की प्रोडक्शन है ये फेवर हाई टेम्परेचर पे फेवर नहीं होती। यहाँ पे आपको KC की वैल्यूज भी जो हैं वो दी हुई हैं दोनों के लिए, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पे गिवन है KC वैल्यू 2.8 इंटू 10⁻²। अगर टेम्परेचर 1000 होगा और अगर आपका टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, देन आपकी KC यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, वो भी आपको यहाँ पे गिवन है। हमने क्या पढ़ लिया बेटे, एक दफ़ा दोबारा मेन पॉइंट्स के रिपीट कर देती हूँ। हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया कि हमारे पास जो है, हम किसी भी रिएक्शन जो है उसकी डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। हमने यहाँ पे रिएक्शंस को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक हमने किए एक्सोथर्मिक और एक हमने क्या किए, एंडोथर्मिक। पहले मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आगे हमने दो कैटेगरीज बनाई, एक कौन सी, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एक वो जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। बेटे जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसका मतलब है कि सिस्टम में हीट जो है वो ऐड ऑन होती है, और इंक्रीज टेम्परेचर जो है वो फेवर करता है किसको, रिवर्स रिएक्शन को। ये आपने बात याद रखनी है। इसी तरह जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है इसका मतलब क्या होता है कि हीट जो है वो सिस्टम से रिमूव हो रही है, और जब हीट सिस्टम से रिमूव होती है तो वो फेवर करती है किसको, फॉरवर्ड रिएक्शन को। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एग्जांपल ली, कौन सी, SO2 + O2, आपके पास क्या बना, SO3 बना। आगे फर्दर हमने इसकी आगे देखी क्या कि टेम्परेचर जो है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करें, पहले हमने क्या बात करनी है, टेम्परेचर इंक्रीज की बात कर रहे हैं हम, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिएक्शन हमारा राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। क्या, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा रिएक्शन मूव करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और इसकी वजह से क्या होता है कि SO3 की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और SO2 और O2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा।
जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब इसकी कंसंट्रेशन बेटे कम होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी डिक्रीज कर जाता है और इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा टूवर्ड लेफ्ट। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो बेटे फेवर करता है किसको, फॉरवर्ड रिएक्शन को, और आपके पास क्या चीज़ बन जाती है, आपके प्रोडक्ट बन जाते हैं। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे क्या पढ़ी कि अगर टेम्परेचर, अभी तो बात कर ली ना कि टेम्परेचर डिक्रीज अगर हो, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो तो रिएक्शन जो है वो मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले हमने क्या बात कर ली थी, हमने कहा था अगर टेम्परेचर हम तब बात कर रहे थे राइट टू लेफ्ट की, अभी मैंने क्या कहा कि राइट टू लेफ्ट नहीं बल्कि लेफ्ट टू राइट वो मूव करेगा। यानी कि जो प्रोडक्शन होती है ना SO3 की, बेटे SO3 की जो प्रोडक्शन है वो फेवर करती है एट लो टेम्परेचर, ठीक है। इसी तरह जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन हमारा शिफ्ट होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसकी वजह से SO3 की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब इसकी कंसंट्रेशन बेटे इंक्रीज होती है ना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो भी क्या कर जाता है, इंक्रीज होता है, और जब इसकी कंसंट्रेशन कम होती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc है उसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो इंक्रीज जब प्रोडक्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। और जो प्रोडक्शन है SO3 की ये कभी भी हाई टेम्परेचर को फेवर नहीं करती। इन द एंड आपके पास Kc वैल्यूज दी हुई हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। एक टेम्परेचर आपको दिया हुआ है कौन सा, 1000 केल्विन अगर आपका टेम्परेचर हो तो Kc की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए क्या है वो बताई हुई है। अगर टेम्परेचर हम लो कर देंगे 298 केल्विन कर दें तब Kc की वैल्यू क्या होगी वो भी आपको यहाँ पे दी। अभी मैंने आपको बताया ना कि SO3 इज नॉट फेवर एट हाई टेम्परेचर, तो Kc उसका बता दिया आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बता दिया कि अगर टेम्परेचर 1000 केल्विन है देन उसकी वैल्यू क्या है, और अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है देन आपकी Kc की वैल्यू क्या है वो भी आपको बता दी। क्लियर। अब हम बात करते हैं बेटे, हमने इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर देखा और उसमें हमने रिएक्शंस को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक हमने कहा था एक्सोथर्मिक, और अब बात करेंगे, हमने एक्सोथर्मिक को अच्छी तरह से डिटेल से एक्सप्लेन किया, अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, ठीक है। उसी तरह जिस तरह हमने एक्सोथर्मिक को भी दो मेन पॉइंट्स में डिवाइड किया था, एक क्या था जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते थे और एक क्या था जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते थे। तो सेम यहाँ पे भी यही कुछ होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में भी या तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब बेटे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम में हीट जो है वो एडअप होती है, और ऐसे केस में कौन सा रिएक्शन को फेवर किया जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन को। दूसरी चीज क्या है कि जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है इसका मतलब है हीट जो है वो सिस्टम से क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, और इस केस में जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो इट फेवर रिवर्स रिएक्शन। यहाँ पे जो इक्वेशन हमने लेनी है, जो एग्जांपल हमने लेनी है एंडोथर्मिक रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए, वो कौन सी हम लेंगे, N2O4, और आपके पास जब ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, सिंपल रिएक्शन है, क्या बन गया 2NO2, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसकी जो डेल्टा ही आपको H बताई हुई है वो क्या है, प्लस 57.2 किलो जूल पर मोल। अकॉर्डिंग टू बेटे ली प्रिंसिपल एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर इस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो हमारा रिएक्शन शिफ्ट होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहाँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये देखो फिर उसको वही शो कर दिया लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो हमारे पास जब हम लोग ये चेंज एक आ जाता है ना, यानी कि चेंज क्या आया कि जब हमने टेम्परेचर को जब इंक्रीज किया तो मैंने आपको क्या बताया कि रिएक्शन हमारा शिफ्ट हो गया लेफ्ट से राइट की तरफ। ये चीज मैंने आपको बताई ना बेटे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जब हमारा रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया तो इस चेंज की वजह से N2O4 की कंसंट्रेशन जो है, N2O4 की बात मैं कर रही हूं। जब हमने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, हमारा रिएक्शन मूव किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसको समझो गौर से। अब जब हमने एक चेंज ले आए, हमारा रिएक्शन मूव किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अकॉर्डिंग टू दिस अब कंसंट्रेशन बेटे चेंज होगी किसकी, N2O4 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और
NO2 की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा, N2O4 की कंसंट्रेशन अब क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और NO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यानी कि जो Kc है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका इक्विलिब्रियम है वो कहाँ शिफ्ट करेगा, टूवर्ड राइट। इन शॉर्ट बेटे हम ये कह सकते हैं कि जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो फेवर करता है किसको, फॉरवर्ड रिएक्शन को, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को। क्या, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर यहाँ पे फेवर कर रहा है किसको, फॉरवर्ड रिएक्शन को, ठीक है। और क्या आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया ना तो इसकी कंसंट्रेशन N2O4 की क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और NO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बेटे ज़्यादा होती है तो Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी जो है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और एज ए रिजल्ट आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि NO2 की कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करता है, और फॉरवर्ड रिएक्शन जब फेवर हो तो इसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब हमने बात कर ली कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो, अब हम दूसरी बात भी देखेंगे कि अगर इसी रिएक्शन में हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज कर दें देन व्हाट हैपन। अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर क्या कर लेते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं, तो हमारा रिएक्शन मूव कर जाता है। जो कुछ पहले हुआ था ना उसी का आप रिवर्स कर लो। अब हमारा रिएक्शन मूव करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। पहले क्या था, लेफ्ट टू राइट मूव किया था, अब कैसे मूव करेगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और जब टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं तो वो फेवर करता है किसको, रिवर्स रिएक्शन को। किसको फेवर करेगा, रिवर्स रिएक्शन को। और आपके पास जो फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो बेटे स्टार्ट हो जाएगी, और आपको इन द एंड जो है वो Kc वैल्यू बता दी है इस रिएक्शन की दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। अगर टेम्परेचर 273 केल्विन होगा देन आपकी Kc की वैल्यू क्या है, अगर टेम्परेचर 373 केल्विन होगा देन आपकी Kc की वैल्यू क्या है। क्लियर हो गया बेटे। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं देन इसको हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। हमने क्या पढ़ा कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में भी हमने दो मेन कैटेगरीज, दो डिफरेंट फॉर्म्स में इसको पढ़ा। एक हमने तब पढ़ा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एक हमने तब इसकी एग्जांपल ली जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। दोबारा मेन पॉइंट्स इसके रिपीट में कर रही हूँ। मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में हीट जो है वो एड ऑन हो रही है, और ये फेवर करता है किसको, फॉरवर्ड रिएक्शन को। दूसरी यहाँ पे हमने मेन चीज़ क्या पढ़ी कि जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है इसका मतलब है कि हीट जो है वो सिस्टम से रिमूव होती है, और ये फेवर करता है किसको, रिवर्स रिएक्शन को। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो एग्जाम्पल ली वो कौन सी ली, N2O4, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे, 2NO2 बनेंगे, ठीक है। अब हम दो चीज़ें यहाँ पे लेंगे, एक लेंगे कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, एक लम लेंगे जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ली शैटिलियर प्रिंसिपल, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा रिएक्शन बेटे मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपके पास, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जब आपका रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करता है तो बेटे कौन कौन सी चेंजेस आती हैं हमारे पास। जो मेन चीज़ आएगी वो क्या आएगी कि कंसंट्रेशन N2O4 की जो कंसंट्रेशन है ये वाली, ये क्या होना शुरू हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। और जो NO2 की कंसंट्रेशन है बेटे ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब जब ये वाली वैल्यू इंक्रीज होती है ना NO2, यानी कि आपकी जो NO2 की कंसंट्रेशन बेटे जब इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kc की वैल्यू वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और आपका इक्विलिब्रियम जो है वो मूव करेगा टूवर्ड राइट। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये फेवर करता है किसको, फॉरवर्ड रिएक्शन को। किसको फेवर करेगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से बेटे इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। जब इसकी कंसंट्रेशन यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है
तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर जाती है और आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाता है टूवर्ड राइट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इन शॉर्ट हम क्या बता सकते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो फेवर करता है किसको, फॉरवर्ड रिएक्शन को। और जब आपका रिएक्शन फॉरवर्ड होगा तो आपके जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दूसरी बात हमने यहाँ पे किया कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, क्या कर दें, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हमारा रिएक्शन मूव कर जाएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्या, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि रिवर्स रिएक्शन जो है वो फेवर करेगा, यानी कि टेम्परेचर को अगर आप डिक्रीज करोगे तो इट फेवर रिवर्स रिएक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपके रिएक्टेंट की फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पहले क्या था, प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही थी, और साथ ही जब आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बेटे इंक्रीज होना शुरू हो जाती है तो आपके रिएक्टेंट जो है वो दोबारा से फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे और इस केसी की वैल्यू जो है वो भी क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। क्लियर हो गया। जब इसकी प्रोडक्शन बढ़ती है ना आपके प्रोडक्ट की, तो आपके केसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, आपके रिएक्टेंट फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि केसी की वैल्यू जो है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और इन द एंड आपके पास केसी वैल्यू दी हुई है रिएक्शन की, जब टेम्परेचर 273 केल्विन होगा देन आपकी केसी की रिएक्शन क्या वैल्यू है, 7.7 इंटू 10⁻⁻⁵, और जब टेम्परेचर आपका 373 केल्विन है देन केसी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.4 है। इज दैट क्लियर। हमने आज के टॉपिक में क्या कर लिया बेटे, चौथी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट कर ली, डेट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। कि अगर मतलब किसी भी जो रिएक्शन है उसका टेम्परेचर चेंज किया जाए तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल जो है हम रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। हमने क्या कर लिया, हमने 3 एप्लीकेशंस कंप्लीट कर ली बेटे ली शैटलियर प्रिंसिपल की। टोटल 4 है ना इसकी एप्लीकेशंस। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशंस मैंने आपको पढ़ा दिया, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर भी आज हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपनी 4th एप्लीकेशन डैट इज़ द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसे ही ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। तो कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। अगर मैं अभी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट शुरू कर लेती हूँ तो बेटे आज के टॉपिक में उसे ख़त्म करना जो है वो इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको मैं इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर ही में जो है वो स्टार्ट करूँगी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर बेटे। कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। जहाँ पे भी आपको लगता है मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, मुझे कन्फ्यूजन है, कोई डेफिनेशन समझ नहीं आती, कोई रिएक्शन समझ नहीं आती, तो आप लोग मेरे से पूछा करें। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।